Starting my own venture into business, I'm here to learn the perks, how to go about it, and things. So, Nice. Basically, I'm also educationist and I have more than 15 years of experience in this field of education. Actually, I want to run my own tuition center or academy, so I want to take tips. And as well, I, with the help of my husband, we run cook food from home. Your husband is chef? Yes. Okay, great. We give the services ready to eat food and frozen food also. Great. Okay. It's a car. Valise home kitchen? Release only. Okay. You're working from Valise. Okay. You have great variety of menu. Yes. Okay. Thank you very much. So, please. I run boutique as well as beauty parlor, but now I left it and free now. You're a beauty expert too? Yeah, Okay. I'm just thinking that what one I can do now here. मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट की है लेडीज़ बुटीक का, तो कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान तो मैं अवेलेबल है, तो लेकिन अब मैं ब्लैंकशो टाउन में भी एक छोटा सा आउटलेट अपना बनाना चाह रही थी। तो हाँ जी, तो मैं चाह रही थी देखो यहाँ आकर मुझे क्या सीखने को मिलता है, तो इस वजह से मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी गैदरिंग में आई हूँ। It's a RPM company, Ray Power Machinery. We work in gensets and we are important in Pakistan. And nowadays, actually, as I have to quit my job because of my in-laws, because my mother is very sick nowadays. So I quit my job and then I start my small SME enterprise like cloths. All they means it's a branded cloth. And I work with different companies like Sapphires, like Bonanza, like Satrangi, and also with Morbhat, Mishri. We purchase from that companies like 20 to 30% off, and then we sold in different. I have a list of retailers. Me, Lina, I have done MBA in IT and then I have done specialization in human resource management. I have an online business and I had an outlet in Rahmat Chowk, but currently I have closed. So just to enhance my online business, I'm here to promote. That's wonderful. Assalamu You are a member too, right? Yes. Assalamu alaikum. My name is Fatma Tariq. I have basically done MS in Management Sciences and running my online business with the name of Trendy Mall. I have a wide range of bedding collection, home accessories, and ladies and gents, kids, unstitched articles. Everything will be available at your doorstep. Cash on delivery is available all over Pakistan. So I'm here to learn more about ideas to how to promote my business, and that's all. सबसे पहले तो ब्रांडिंग नहीं करनी आ रही होती है हमें। दूसरा, उसके बाद हम उसको मार्केटिंग कैसे करें उसकी, बोथ आर डिफरेंट बाय द वे। बहुत सारे लोग इसको एक ही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद इसकी सेल्स इज अ डिफिकल्ट टास्क, आसान नहीं है। एक चीज का होना आपके पास या आपने तो उसे बाय कर लिया, लेकिन उसको बेचना ही असल काम होता है और वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और उसके लिए हमें कनेक्शन बिल्ड करना ही पड़ता है, उसके बगैर नहीं होता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बायर्स बाय कर लो। होता है ना आजकल बड़ा ट्रेंड है कि जी आप फेसबुक पे इतने लोग बाय कर लो, आप इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स बाय कर लो, बट आप कभी बायर्स बाय नहीं कर सकते। आप किसी को पैसे देके ये नहीं कह सकते प्लीज ये मेरी प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक है। तो इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं। हमारे पास सेल से भी एक बैठी हुई है, हम उनसे भी लेंगे कि ये क्या सजेस्ट करती है हमें वेज। हम सारे ऐसे ही हैं कि जैसे हमने एक छोटी सी चीज से शुरू किया, देन वी ट्राइड एंड टेस्टेड डिफरेंट मेथड्स, हमने रिसर्च की और हमारे पास कुछ आउटकम आ गया, और उसकी बेस पे हम चाहते हैं कि अब हम दूसरों को भी हेल्प आउट करें, ठीक है। कि वो किस तरह अपने बिजनेस को सबसे पहले ब्रांड और उसके बाद उसको किस तरह मार्केट करें और उसको किस तरह सेल्स तक लेके जाए। स्मॉल इंट्रोडक्शन, बहुत थोड़े से लोगों को मेरा पता भी होगा। फॉर न्यू, आई एम निकिता चौधरी, आई एम सोशल एंटरप्रेन्योर, साइड बाय साइड आई एम फाउंडर ऑफ दिस क्लब, Valencia Lay Club. I'm a student of PhD and I'm lecturer by profession and doing small little other things which are not relevant to today's talk. So let's start. A simple thing I'll add here before starting. Okay, I started from a small business.
I was teaching, I was student at the same time, and I started from a small business that was relevant to this club, because I took start from one activity, that was cooking baking classes, and then I established my own online cake shop. And I explored lot of ways. I attended lot of training sessions, and then I got few ways that okay fine, this was too simple and we were making it too complicated. ठीक है, तो आज हम इसको इतना ही complicated से simplify की तरफ लेके जाएंगे कि हम इसको किस तरह अपनी connections को build करेंगे, और सिर्फ connections को build करना है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। Sales जितना sales मुश्किल है ना, उतना ही आसान भी है। जस्ट थोड़ी सी मेहनत करके हमें अपने कनेक्शंस को बिल्ड करना होता है और उनको सेव करना होता है। सो आज का मैंने वैसे आपको बता भी दिया है कि हमारा सबसे जो मेन हमारा आज की वर्कशॉप का टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, देन हाउ टू मैनेज योर सेल्स, देन हाउ टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इफेक्टिवली टू प्रमोट योर बिजनेस। फिर उसके बाद VLC किस तरह आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। VLC के बारे में अगर आप सबको पता भी होगा, ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपनी यहाँ से भी आप अपने बहुत ज्यादा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारे बिजनेस में हम आपको हेल्प आउट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम काफी अरसे के बाद अपनी बिजनेस क्लब की वर्कशॉप रखी है, क्योंकि हमारी जितनी बिजनेस लेडीज थी वो माशाल्लाह दे आर फ्लरिश्ड to a level. Now we are coming back to our workshops and all, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे सुन के न्यू एंटरप्रेन्योर्स ने हमें ज्वाइन किया है, जो कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग कर चुके हैं, तो उन सबके लिए ये चीजें हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले तो जब आपने अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपका एक आइडिएट होना चाहिए कि आपने आइडिया को गैदर करना है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और उसके ऊपर आप इतने ज्यादा आइडिया, जैसे मैं अभी I was talking to I forgot your name, Miss Asia. Miss Asia. Okay, I was talking to her. Miss Asia told me that she is just thinking कि वो क्या करे. She tried maybe 2 or 3 businesses already. Now again she is on the stage that she is thinking what she should do. ठीक है, अब उनके पास एक्सपर्टीज है, मुझे लगता है she can start business from tomorrow because she is having skills. जिसके पास स्किल्स होती है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। स्किल्स, इंटरेस्ट और आपकी मार्केट में वो डिमांड है, 3 चीजें आपको चाहिए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं फिर हम सोचते हैं कि ओ मैंने तो सोचा नहीं, किसी और का तो, मैं अगर पार्लर का काम कर रही हूँ, किसी और का तो कपड़ों का काम बड़ा अच्छा चल रहा था, काश मैं कपड़ों का कर लेती हूँ, उसके कपड़े ज्यादा बिकते हैं, पार्लर तो हर कोई नहीं जाता, कपड़े हर कोई पहनता है, तो मैं क्या करूंगी, फौरन मेरे दिमाग में अपने ही बिजनेस के बारे में बैड आइडियाज आना शुरू हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है कि स्टार्ट करने से पहले, या अगर आपने स्टार्ट कर भी लिया इट्स ओके, आप वर्किंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। आपने स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि आपको स्टार्ट क्या करना चाहिए। आपका उसके अंदर कोई एक्सपर्टी है, थोड़ी बहुत नहीं है तो उसको ले सकते हैं, एक्सपर्टी मुश्किल नहीं होती लेना। यू कैन अटेंड सम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स और कोर्सेज एंड ऑल, एक्सपर्टी आ जाती है। सेकंड, आपके पास वो वाली मार्केट है कि आप पकड़ के यहाँ पर वूलन कपड़े, बहुत ज्यादा गर्म कपड़े हर वक्त सेल करते रहोगे, पाकिस्तान में मार्केट नहीं है उस चीज की, आप मे भी ट्रेंड ना कर सको। ठीक है, अब आपने देखना है कि पाकिस्तान का वेदर क्या है, लोग कैसे हैं, वो कौन सी चीजें एक्वायर करेंगे और मेरी कौन सी चीज सेल होगी, इन सारी, मतलब आपने वो कम्युनिटी देखनी है। और फिर एक और चीज कि ये ना हो कि वहां पर उस बिजनेस से रेलिवेंट बहुत ज्यादा पहले ही खुले हुए हों। ठीक है, अगर वो पहले ही होंगे तो आपकी अपनी आइडेंटिटी बनाना आप अपने लिए मुश्किल कर देंगी। मतलब कपड़े हर कोई सेल करने लग जाएगा तो आपको वो कौन सी 2 या 3 या 4 चीजें हैं जो आपको अलग कर देंगी दूसरों से, ठीक है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी बनाएंगी, जो आपकी पहचान बनाएंगी, वो कौन सी चीजें होंगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग द फर्स्ट स्टेप। अब आपने पहला स्टेप तो कर लिया, पहला स्टेप जब आपने कर लिया, आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग के तहत बहुत ज्यादा आइडियाज आ गए। आप ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मतलब आई कैन डू, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मेरी ये स्किल्स हैं, मार्केट को इसकी जरूरत है, और मे बी ये चीज तो बहुत ही चल सकती है, सॉर्ट ऑफ इसकी तो यहाँ पर कोई बंदा ही नहीं बेच रहा है इसको, तो मैं तो बेच ही लूंगा, या कोई बंदा इसको यूज ही नहीं कर रहा फिर भी मैं बेच लूंगा। ये 5-6 फैक्टर्स होते हैं जो आपकी चीज को बकवाते हैं या आपके बिजनेस को स्टार्ट कराते हैं। इनिशिएट जब हम कुछ करते हैं तो इसी तरह करते हैं ना। अच्छा, अब आपने वो तो कर दिया, नाउ आपने अगेन क्या करना है, रिसर्च करनी है। अब रिसर्च के अंदर यू हैव टू फाइंड आउट
कि ये जो फिलहाल बिजनेस मैंने सोचा है, ये 5-6 आइडिया जो आपने सोचे हैं कि आप इनको स्टार्ट कर सकते हो, ये और कहां हो रहे हैं, कौन इसको कर रहा है, आपकी लोकेलिटी में कौन, आपके फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स में कौन कर रहा है, फिर आप जहां पर बिजनेस इसको स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वहां कौन कर रहा है, मतलब आपकी मार्केट के अंदर कौन कर रहा है, ओवरऑल सिटी में कौन कर रहा है, आपके मुल्क में कौन कर रहा है, आपकी कंट्री में कौन कर रहा है। तो ये आपके पास रिसर्च डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो रिसर्च, उसके लिए आप वो प्रपोजल या प्लान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पीछे रिसर्च करनी पड़ती है। वो पूरी हमने रिसर्च की कि अच्छा हमने ये पर्टिकुलर काम स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हमने आगे क्या मतलब कौन कर रहा है और कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करके वो कर रहा है, ये आपने एक्सप्लोर करना है। फिर आपने देखना है कि उसको उसकी सक्सेस रेशो क्या है, ठीक है। अगर उसकी सक्सेस रेशो भी आ गई, अब वो किस कदर हो रहा है, ये सारा आपका रिसर्च बेस्ड काम होगा। अपने हर आइडिया के ऊपर इक्वली रिसर्च करना है आपने। आपके फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 10 20 100 आइडियाज भी आ गए, आप लोग बनाए, देयर इज नो प्रॉब्लम। ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपका ब्रेन जितना बाहर वास्ट होकर सोचेगा उतना ही अच्छा होगा। लेटर ऑन आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर दुनिया आपका बिजनेस बंद कराएगी, आप कहेंगे अलोन आई कैन टेक, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आइडिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद आपने एक्सप्लोर करना है कौन से मेथड्स यूज हो रहे हैं, उसके हर चीज के लिए कौन से मेथड यूज हो रहे हैं, किस तरह वो बिजनेस बना, किस तरह वो एक्सपैंड हुआ, क्या स्ट्रैटेजीज वो यूज हो रही है, कितना वो फ्लरिश कर रहा है, कितना सक्सेसफुल है, ये सारा कुछ आपने एक्सप्लोर करना है। फिर उसके बाद आपने अपना एक मॉडल, अपना एक प्लान बनाना है जो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल हो, ठीक है। तो ये चीजें आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, अपनी शाबाश और अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्लान करना है, उसका प्लान बनाना है कि जी आपने इसको मार्केट में लेके जाने के लिए सबसे पहले इसको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप इसको सेल कैसे करेंगे, ये 2-3 चीजें आपके प्लान में आनी चाहिए। प्लान के बाद प्रोटोटाइप, अब आपने प्लान कर लिया कि आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, किस तरह आप उसको करेंगे, सारा कुछ आपने प्लान बना लिया। अब उसके अकॉर्डिंग आपने एक सैंपल प्रिपेयर करना है। वो ड्रेस डिजाइन भी कर सकती हैं, वो बच्चों के कपड़े भी बेच सकती हैं, वो ज्वेलरी ला के और बना के भी बेच सकती हैं, वो अच्छा खाना पका सकती हैं, वो पिकल बना सकती हैं, वो चटनियां, मुरब्बे सब कुछ बना सकती हैं। शी इज वंडरफुल। अब क्या वो हर एक चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है? ऐसे नहीं होगा। आपने इसी के लिए ही वो रिसर्च और प्लान, और फिर उसके बाद आपने सैंपल प्रिपेयर करना है। अब जब सैंपल आएंगे ना, तो आपका जो बंदा, जिसको आप स्टेक होल्डर आप कह लें, या कोई भी जो आपको लगता है कि आपको बेस्ट ओपिनियन भी दे सकता है, उसके पास आपकी चीज जाएगी तो आगे 100 लोगों तक कस्टमर बन सकता है, ठीक है। इस तरह के लोग होते हैं। अब आपने क्या करना है, उसके सैंपल प्रिपेयर किए, जिसको हम इस प्रोटोटाइप में सैंपल प्रिपरेशन में रख लें, किए आपने वो सैंपल प्रिपेयर, और आपने अपने स्टेक होल्डर्स तक वो भेज दिए। आपने कहा इसको ट्राई करें, मुझे बताएं कि इन 5-6 चीजों में से कौन सी मेरी बेस्ट है, ठीक है। यहां पर आपको पता चल गया कि आपकी बेस्ट चीज क्या हो सकती है, और वाकई वो स्टेक होल्डर ने आपको बताना है। उसके लिए आपको सैंपल बनाना पड़ेगा। अब सैंपल के ऊपर ही क्या हुआ, आपकी कॉस्टिंग भी हो रही है, आपको हर चीज का गिनती भी हो रही है कि ये चीज में इतना मेरा, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने रोल बनाया, उसका घी कितना लगा, उसका फ्लोर कितना लगा, उसको पानी, दूध, मक्खन, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, आलू सॉर्ट ऑफ, वो सब कुछ उसने कॉस्टिंग भी की है। अगर उसने कपड़े लिए हैं तो उसको पता है मैंने इतने में लिया, इतनी मेरी प्रॉफिट मार्जिन है और इतने में ये हो गया। मतलब उसका साथ साथ वो सारा 5-6 आइटम जो उसने प्रिपेयर किए हैं उसकी कॉस्टिंग हो गई। अब वो कॉस्टिंग करने के बाद वो उसने अपने स्टेक होल्डर को भेज दिया। अब स्टेक होल्डर उसको बताएगा कि ये जो चीज है तुम्हारी, ये बाकियों से डिफरेंट है, ठीक है। अब तुम इसके साथ जाओ, जो अच्छी एडवाइस देने वाले लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में, वो। अच्छा, उसके बाद सोर्स, अब उसको पता चल गया कि ये एक पर्टिकुलर जो चीज है, इसको मैं अगर इसका बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो आई अर्न गुड, ठीक है। ये मार्केट में इतनी ज्यादा आम भी नहीं है, और मेरे पास जो है वो लोकेलिटी भी इस तरह की है, आई कैन सेल टू, और इसकी जो है वो मेरे पास स्किल्स भी है, मेरे पास इसका इंटरेस्ट भी है, मतलब सारी वो चीजें, वो लवाजमात वो पूरे हो रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब उसने क्या करना है, उसने देखना है कि वो सोर्स, अब सोर्स, हमें सोर्स में क्या चाहिए होगा, हमारा क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकता है सोर्स के अंदर, कोई मटेरियल, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो है वो मटेरियल कहाँ से आएगा, हम बाद में किसको बेचेंगे, सारी चीजें सोर्स के अंदर आ जाएंगी। आपका सोर्स वो है जहां से आपने चीज लेनी है, जहां आपने देनी है, वो हर चीज उसके अंदर आ जाएगी। आपने यहाँ सोर्स के अंदर इस चीज की वर्किंग करनी है, ठीक है।
उसके बाद कॉस्ट, बड़ा मजे का ये टॉपिक है कॉस्ट। आपने अगर कॉस्टिंग नहीं की ना तो आप प्राइसिंग नहीं कर सकते, ठीक है। पहले उन्होंने वो अचार मुझे 1000 रुपए में भेजा कि ये केजी मुझे 1000 में पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कॉस्टिंग नहीं की थी। मैंने कहा मे बी 1000 मार्केट का रेट नहीं है, आप इसको चेक करें कि इसकी आपकी कॉस्टिंग आपको पड़ क्या रही है, देन आप प्राइसिंग पे जाएं। कॉस्टिंग के बगैर एक डब्बा मैंने अचार का तैयार किया और उस पर मैंने प्राइस लगा दी 1000। तो कॉस्टिंग और प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम देखते हैं कि हम कॉस्टिंग किस तरह कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ शर्ट, 100 रुपए की वो आई है, ठीक है। उसके ऊपर मैं प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 35% रखना चाहती हूँ। अब 35% क्या होता है 0.35, 35 डिवाइडेड बाय 100 करके देख लें, आई गेस 0.35 ही होगा। तो हमारे पास इसको हमने प्लस कर लिया अपनी कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई कर लिया अपनी कॉस्ट प्राइस के साथ, और देन हमारी जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ हमने इसको अगेन प्लस किया, तो दैट वुड बी 135। ये देखें हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो है जी 100 रुपए, हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 35%। 35% को अगर हम करें डी तो दैट विल बी 0.35, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को अगेन बीच में प्लस करना है, तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी आवर सेलिंग प्राइस। हम अब सेल कर सकते हैं इसको इस प्राइस के ऊपर, लेकिन यहां पर आपने बहुत फेयर होना है। कॉस्ट प्राइस के अंदर आपने अब ये नहीं कह देना मेरा बिजली का बिल भी ऐड हो जाए, सीधी सी बात है, होता है ये। लेकिन आप घर में एक चीज प्रिपेयर कर रही हैं, अपनी मेहनत कर रही हैं, तो उसको अभी साइड पर रखें, बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस हियर। जब आप बिजनेस कर रेस्टोरेंट और ये वो उसकी कॉस्टिंग अलग होती है। दैट अगर कोई रेस्टोरेंट जिस तरह आप है अगर उसकी कॉस्टिंग करनी हो तो दैट इज अ सेपरेट मॉड्यूल। उसका भी मैं थोड़ा सा आपको लिंक भी दे देती हूँ कि किस तरह वो हो सकती है, बट दैट इज सेपरेट, क्योंकि उसके अंदर आपके ओवरहेड्स बहुत ज्यादा होते हैं। घर के अंदर चीज बनने में कोई ओवरहेड्स नहीं होते, या आपने मार्केट से भी चीज परचेज की, जिस तरह आपने कोई चीज परचेज की उसके कोई ओवरहेड्स नहीं पड़े आपको, ठीक है। आपने डायरेक्टली एक वेंडर से चीज पकड़ी, उसके ऊपर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा 10, 20, 30, 40, 50 तक प्रॉफिट मार्जिन जाते हैं रेस्टोरेंट के बिजनेस में। तो आपने वो रखा, मे बी मोर देन दैट भी होते हैं बिग आउटलेट्स के, क्योंकि उनके एक्सपेंस भी उस हिसाब से होते हैं। आपने वो रखा एंड देन यू सेल, वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाती है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू गेट सेलिंग प्राइस। तो जब तक आपने कॉस्टिंग नहीं करनी आप लोगों ने सेलिंग प्राइस नहीं निकालनी। और अगर आपने कॉस्टिंग करनी है उसकी एक स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी मिनिमम जो प्राइस है ना उसको डिटरमिन करना है कि ये जो पानी की बॉटल है तो मैक्सिमम क्या हो गया जी 80 प्राइस हो गई, यहाँ पर मिनिमम क्या हो गई 50। मेरे लिए मुझे लगता है पानी 50 रुपीज की बॉटल 1.5 लीटर की होनी चाहिए। अब यहाँ पर 80 रुपीज है। अब हमने क्या करना है, कोई 5 रेंजेस सेट करनी है अपनी प्राइसेस के अंदर जो 50 और 80 के दरमियान में हो। 55, 60, 70, 80 व्हाटएवर, ठीक है। ये 5 रेंजेस आपने सेट कर लेनी है कि मिनिमम 50 रुपए से नीचे तो मैंने नहीं जाना। प्रॉफिट मार्जिन के साथ मुझे अगर अच्छा रेवेन्यू मिल जाए तो ये 80 रुपीज है, लेकिन अगर मुझे 55, 60, 65, 70, 75, 80 मतलब यहां तक कोई भी रेट मिल जाए तो आई एम गुड, आई एम हैप्पी, ठीक है। वो जितना ऊपर जाएगा आप ज्यादा हैप्पी हो जाएंगी, जितना 50 के करीब होगा आप थोड़ी सी कम हैप्पी हो जाएंगी, बट यू विल बी ओके, एटलीस्ट लॉस नहीं हो रहा। तो ये जो है यहाँ पर आपने अपनी प्राइस रेंजेस सेट कर ली। अब आपने तो सेट कर लिया सारा कुछ अपनी तरफ से, जो आपको प्राइस पड़ी और जो आप डिजायर्ड प्राइस है उसके दरमियान में। यहां पर आपने क्या करना है, एक सर्वे कंडक्ट करना है। सिंपलेस्ट वे है गूगल सर्वे, आप वो कर लें। उससे ज्यादा आप लोगों की एक लेडीज कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है, आप लेडीज कम्युनिटी से अपना सर्वे बनाएं। गूगल फॉर्म पे 2 मिनट लगते हैं, आप उसको शेयर करें, उसी वक्त सर्वे फॉर्म में आपको प्राइस आ जाएगी। 3-4 पॉइंट्स है, लोगों ने जस्ट क्लिक करना है, जिसका जो दिल करता है एक आध पॉइंट को क्लिक कर लेगा। आप 55 में पानी बाय करना, मेरे पानी की ये क्वालिटी है, मैं कलर्स आपकी पर्सनैलिटी को भी एनहांस करके लाते हैं सामने को, क्योंकि अगर हम ह्यूमन साइकी की बात करते हैं, समटाइम आपकी बात इतनी जल्दी पिक नहीं करती जितना आपका टैगलाइन पिक कर जाता है, आपका कलर पिक कर जाता है, आपकी मतलब कि देखिए फॉर एग्जांपल मोस्टली कस्टमर क्या होता है बिहाइंड द कैमरास होता है,
आप उनसे डायरेक्ट लिंक नहीं करो। अभी हम यहाँ एक रूम में हैं, हम एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं। मैं बोल के बता सकती हूँ कि जी ये मेरा टैगलाइन है, बट जो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बिहाइंड द सीन अगर कोई है तो वो मुझे कैसे जानेगा, या वो मेरी साइकिल को कैसे जानेगा, ठीक है। तो उसके लिए कलर्स और आपके फॉन्ट और आपकी जो टैगलाइंस होती हैं वो आपको आइडेंटिफाई करती हैं कि आप क्या हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। तो क्या होता है जब आपका एक ही कलर होगा, एक ही स्टाइल का फॉन्ट होगा, क्या होगा कि जब आपने एक जगह मार्केट कर लिया, उन लोगों को याद हो गया, जब आपने दूसरी जगह की भी किया, आप लोग पैसे लगा रहे हो ना मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अगर आप किसी को इवन कोई पीआर दे रहे हो या कुछ भी, दिस ऑल कॉस्ट यू समथिंग, ठीक है। वो समथिंग क्या है, वो जब आपका इसको भी पता चल गया, इसको भी पता चल गया, इसको भी पता चल गया, ये होगी आपकी ब्रांडिंग, ठीक है। कि 10 लोगों को आपकी ब्रांड का पता है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग, ठीक है। कि ये मैकडॉनल्ड्स का नया बर्गर आ गया या कुछ भी, टैगलाइन बदल, मतलब उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बदल रही है चीज की, बट ऊपर लोगो और हर चीज नंबर और ये वो सारा कुछ सेम रहता है, तो लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये वही है। तो लोग अगर आपकी ब्रांड में इंटरेस्टेड हैं और आपने उनका ट्रस्ट डेवलप कर चुके हैं अपनी प्रोडक्ट के या अपनी ब्रांड के ऊपर, तो दे विल गो एंड दे विल रीड दैट, ठीक है। इसके वैसे बेनिफिट्स भी होते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं कि वो कहेंगे अच्छा शायद दोबारा वही चीज आ गई, तो पीपल विल नॉट रीड टू। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपने अपना कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है तो दे विल लाजमी। अब जो आपको जानता होगा ना, आप उसकी चीज देख लेते हो, तो इसलिए बार बार अगर आप चीजें चेंज करोगे, लोगों को नहीं पता चलेगा ये आपका ही है, तो पीपल विल नॉट सी योर थिंग्स। तो ये है। उसके बाद जी, जब आपने अपना प्रमोशन प्लान के 4th स्टेज पे हो, तो आपने क्या करना है, अपनी स्टेशनरी डिजाइन करनी है। बहुत सारे लोग आप में से प्रिंटिंग ना कराएं, पैसे नहीं है शुरू में, इट्स ओके, लेकिन कुछ चीजों की प्रिंटिंग हमें चाहिए ही होती है। नोटपैड वगैरह जो है ना, वो आपकी आम भी हो तो चल जाता है, ठीक है, ये नोटबुक वगैरह और ये वो सारा, लेकिन आपका इनवेलप, आपका बिजनेस कार्ड, आपकी ब्रोशर्स, 3 चीजें ये, इसके अंदर ब्रोशर्स मेंशन नहीं है क्योंकि हमें पिक्चर वैसी नहीं मिली थी जिसके अंदर ब्रोशर भी पड़ा हो, ठीक है। और लेटर हेड की भी बहुत सारे बिजनेस को जरूरत नहीं होती है, जिन्होंने तो अपना कोई बात किसी को कन्वे करनी है, एक रिक्वेस्ट करनी है या कोई मैसेज भी करना है, या कोई ऐसी चीज या कोई आपकी नई चीज आ रही है, कुछ भी ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई बात करनी है, कोशिश करें लेटर हेड पे लिख के भेज दें, कोई टाइम नहीं लगता। तो ये जो चीजें हैं, इसके अंदर मैं आपको ये कहूंगी कि बिजनेस कार्ड और ब्राउचर के बगैर तो बिजनेस स्टार्ट करने का सोचे भी ना। आप कहीं जाएं, आपका बिजनेस कार्ड और आपका ब्राउचर जो है वो आपके पास होना चाहिए। विदाउट दैट नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस, आई थिंक सो। बड़ी पैटी और सिंपल चीज है। तो जी नेक्स्ट, आपके प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं? पहले तो आप लोग बताएं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप लोग यूज कर रहे हैं मार्केटिंग के? सोशल मीडिया पे कौन कौन से? फेसबुक, इंस्टा मोस्टली। इंस्टाग्राम कर रही हैं आप, ठीक है, और फेसबुक। साइमा जी आप क्या कर रही हैं? अभी नहीं कर रही हैं, गुड। जो कुछ नहीं कर रहे वो भी कमाल कर रहे होते हैं, तो शी इज यू नो इनटू डूइंग अ लॉट इन द फेज ऑफ। अच्छा, आप प्लीज अभी भी कोई आप कहीं पर आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है? नहीं, फूड पैंडा पे कुछ हट सकिए काम। ग्रेट। तो फूड पांडा को यूज करने का भी मेरा ख्याल मुझे एक वर्कशॉप रखनी चाहिए। यूज फूड पांडा इज वेरी लेकिन वो रिकॉर्डेड भी होगा सेशन। अच्छा, यास्मीन, वेयर यू एग्जिस्टिंग? मैं मोस्टली कभी व्हाट्सएप पे, ठीक है। फेसबुक पे भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, ठीक है, आपका फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। ठीक है, आपका मिस उस्मा? लिंक्डइन, फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप। आपका? मेरा इंस्टा था और फेसबुक फिलहाल क्लोज है। ओके ओके। सो आप लोग आप क्या यूज कर रही हैं? फेसबुक और इंस्टा। फेसबुक और इंस्टाग्राम जी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन। okay, great, cool. Because you had a previous job too, so LinkedIn was important for you. आपने Instagram और आप क्या यूज कर रही हैं? आप? मैं फातिमा। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे भी चैनल बनाया हुआ है, और OLX पे भी, Great. और व्हाट्सएप पे। Great. वाह, तालियां। Wonderful. देखें, हमारे पास जितने भी सोशल मीडियाज हैं,
उनके ऊपर एग्जिस्टेंस के कोई पैसे नहीं है। हाँ, नहीं, वेबसाइट लेकिन एक वन टाइम कॉस्ट है जी, वेबसाइट बनवाने पे या बनाने पे वन टाइम कॉस्ट आती है। वन टाइम कॉस्ट। हाँ, वो फिर और फिर उसको जी, मैनेज जी, करना अच्छा, एक काम है। वेबसाइट का ये, लेकिन आई थिंक वेबसाइट एक वहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो मैंने एक और किया था तरीका, ऑलरेडी जो वेबसाइट्स बन रही होती है वहाँ पे आप ऐड पे करते हो, ठीक है। आप एक लिंक पे करते हो, एक छोटा सा अमाउंट होता है, आपके प्रोडक्ट का ऐड पे हो जाता है, वो पॉपअप होता है। अगर जो भी जिस भी, फॉर एग्जांपल मैं अगर मेरे ऑफिस की वेबसाइट की बात करूँ RPM की, तो वहाँ पे जेनसेक्स वगैरह का सारा कुछ होता है। तो वहीं एक छोटा सा आप स्पेस बाय करते हो और वो आपका ऐड पॉपअप होता है। आप जैसे उसे लिंक करते हो वो आपको कनेक्ट कर देता है। बिल्कुल, these are the paid marketing। हाँ, ठीक है, we'll come later on this। अभी हम इन लोगों को देखें, आपने देखा होगा कि मेरा मतलब मुझे लग रहा है कि ज्यादातर ऑडियंस सारे मीडियाज पे अवेलेबल ही नहीं है, तो इनकी एग्जिस्टेंस दैट मैटर्स अ लॉट। एग्जिस्टेंस के कहीं पर कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। आप OLX पे अपना अकाउंट बनाएं, एग्जिस्टेंस के कोई पैसे नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट रजिस्टर करना है, अपने ईमेल एड्रेस, अपना फेसबुक पे पेज बनाए, एग्जिस्टेंस के कोई पैसे नहीं है। इंस्टाग्राम पे बनाए, एग्जिस्टेंस के कोई पैसे नहीं है। सो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं क्या क्या। हमारे पास फेसबुक है जी, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, आजकल बड़ा इमर्जिंग मार्केट है। और ये आपको वीडियोस बनाने के लिए भी हेल्प आउट हो सकता है, इवन स्नैपचैट भी वीडियो बनाने के लिए। पाकिस्तान में स्नैपचैट इतना कॉमन नहीं है, बट बाहर की कंट्रीज में ज्यादा मार्केटिंग जो होती है दैट इज फ्रॉम स्नैपचैट। पाकिस्तान में नहीं, मैंने देखा जब हम बाहर थे तो हमें हर चीज स्नैपचैट पे अवेलेबल होती थी। हम पूरे मार्च ने वो चीजें लगाई होती थी एंड दे आर वेरी गुड एट दैट। हमारी मार्केटिंग इतनी नहीं होती और उनका वहां पे सेल्स भी बड़ी होती है, जब मैंने ये स्टडी किया था। अच्छा जी, YouTube है हमारे पास, ठीक है, जो आपको लेटर ऑन अगर आप उसको पोस्टिंग और इसको आप चलाते हैं एज चैनल भी आपकी काम कर देता है और इससे आप अर्न भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल बनाने पे कोई कॉस्ट नहीं आती, अगर आप खुद सेंड करें फिर भी कोई नहीं आती, लेकिन अगर आप बाय करके बल्क में ईमेल सेंड करते हैं लोगों को तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है मे बी 5 पैसा 3 पैसा सॉर्ट ऑफ इतनी कॉस्ट आती है। प्रीवियसली इतनी थी, अभी थोड़े अर्से से 2-4 महीने से जो हाइप हुआ है वो, उसके बाद आई एम नॉट श्योर कितनी है, बट दिस इज वेरी लेस। फिर SMS हम बाय करते हैं, छोटा सा फोन होता है, उसके अंदर एक सिम लेते हैं, वो 2-3 पैसा का या 10 पैसा का एक मैसेज पड़ता होगा, नॉट मोर देन दैट। मतलब आपके 100 रुपए 200 रुपए में आपके हजारों लोगों को मैसेज चले जाते हैं, ठीक है। वेरी कॉस्टलेस थिंग। फिर इसके बाद प्रिंट करें आप, ये हम वो देख रहे हैं जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये पेड अनपेड नहीं अभी हम गए, ठीक है। फिर इसके बाद आपके प्रिंट में जो आपकी आदतें हैं, फ्लायर्स, जो मैंने पहले भी कहा है कि आपकी ब्रोशर्स फ्लायर्स लाजमी आपके पास होने चाहिए। कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें, अपना ब्रोशर वहां रख दें, ठीक है। अपना किसी को पकड़ा दें, किसी घूम फिर के ये जो ग्रोसरी शॉप्स हैं ये वो, उनके ऊपर तो हर एक ने खाना तो खाना है ना, कपड़ों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बाहर बुर्का पहन के तो चले जाएंगे लेकिन खाए बगैर हम कहीं कुछ नहीं कर सकते, तो ग्रोसरी शॉप्स के ऊपर बहुत ज्यादा विजिट होता है हर एक का, तो वहां पर रखवा दें, ठीक है। उसके बाद बैनर्स और बिलबोर्ड्स हैं। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर आपके घरों में गिरता है, उसका भी एड कोई इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता और वो होलिस्टिक और बड़ी मार्केटिंग के लिए यूज हो सकता है। फिर मैगजीन्स जो होते हैं वो। उसके बाद एग्जीबिशंस वगैरह, जिस एरिया में आप रहते हैं उसकी जितनी भी एग्जीबिशंस और इवेंट्स होते हैं उनको अटेंड करें। उनके अंदर ये होता है कि आपकी सेल्स हो या ना हो, एटलीस्ट लोगों को आपका पता चल जाता है। आप वही ब्रोशर जो आपको मैंने शुरू से कहा और अब तक कह रही हूँ, वही वाला एटलीस्ट आप अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बहुत सारे लोगों को आपका नाम और बहुत सारे लोगों को आपका पता चल जाएगा। उस एक एग्जीबिशन के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हो। हमारी अपकमिंग एग्जीबिशन से पहले हम एग्जीबिशन को किस तरह इफेक्टिव बना सकते हैं और उससे हम किस तरह ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम एक सेशन रखेंगे। अभी मैं इसको ज्यादा नहीं कर रही। आज के लिए ये देखें, इन आवर फैक्ट्री वी मेक लिपस्टिक, इन आवर एडवर्टाइजिंग वी सेल होप। आपने दूसरों को ये नहीं बताना आप क्या बेचना चाहते हैं। मार्केटिंग के अंदर एक मेजर रूल ये होता है कि आपने ये नहीं बताना व्हाट यू आर सेलिंग, आपने ये बताना है कि आपको इस चीज की जरूरत है, ठीक है, आप इसको यूज करें, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका अपना कोई, मेरा कोई फायदा नहीं है, आप नहीं लेंगे तो आप ही पिछताएंगे। तो आपका मार्केटिंग का स्टाइल ये होना चाहिए। आप बना क्या रहे हैं, आप बेच क्या रहे हैं, ओके। आपने दूसरों की नीड के ऊपर काम करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करना। अच्छा जी, ये है जी वो प्लान जो हम आप लोगों को देने जा रहे हैं, ठीक है। वो क्या है कि जी
सोशल मीडिया के ऊपर जितना काम हो रहा है, आप लोगों ने बताया कि आप लोग एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉपरली। हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जिस्ट करना, उसके ऊपर कुछ प्रिपेयर वगैरह करना, बल्कि हम आगे चले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सोशल मीडिया की प्रमोशन के ऊपर आपको हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी एग्जिस्टेंस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, स्नैप, व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस आएगा, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस आजकल बड़ा प्यारा फीचर है, इसके ऊपर प्रीवियसली मैंने एक वर्कशॉप की भी थी। यास्मीन आप थी उसमें? उसके सारे फीचर, उसका यूज, दैट इज ऑसम। मतलब आपका आधा बिजनेस, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है व्हाट्सएप बिजनेस से। तो वो मैं प्रीवियसली कर भी चुकी हूँ, लेटर ऑन अगर जरूरत होगी हम कर सकते हैं कि बड़ा प्यारा फीचर आया हुआ है। आप व्हाट्सएप बिजनेस पे अपना नंबर लिखिए, बिजनेस नंबर, फिर उसके बाद स्नैपचैट के ऊपर एग्जिस्टेंस, टिकटॉक, फिर यूट्यूब, ये सब के ऊपर आपकी एग्जिस्टेंस, इनको यूज करना। फिर उसके बाद आपका जो आर्ट वर्क है वो हर एक को प्रिपेयर करना नहीं आता होगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स लिया हो या थोड़ा बहुत ऑनलाइन यूट्यूब और ये वो इससे लर्न करके अपने पोस्टर्स खुद बनाए हो? मैंने भी बनाया खुद पोस्टर, खुद, ठीक है, कैनवा पे। अब आप तो माशाल्लाह से कोर्स कर रही हैं फुल फ्लेज। अच्छा, ये तो मैंने अपना खुद डिजाइन माशाल्लाह, ये मुझे दिखा दें जरा। ये मैंने खुद डिजाइन किया था। अच्छा, ये मेरे Canva जो पे। कार्ड्स हैं, मैं अपने कार्ड्स भी खुद डिजाइन करती हूँ। और ये आप तो आर्टिस्ट हैं। नहीं, मैंने वो तो एडोब में। अच्छा, ग्रेट। तो ये इन्होंने खुद कैनवा पे बनाया, ये मेरी ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट। अब बहुत सारे लोग होंगे इम्प्रेस हो रहे होंगे कि हमसे तो बेहतर है ना, कुछ तो बनाया है ना, समथिंग इज बेटर देन ये नथिंग, मैंने कैनवा के थ्रू बनाया। ठीक है। ये कैनवा के ऊपर है। अब सिंपल सी ऐप है कैनवा, ठीक है, आराम से पोस्टर बन जाता है। तो हम इसके अंदर ये एक कहने के ट्रेनिंग सेशन के तौर पर हम इसको करेंगे कि आप फेसबुक को किस तरह इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम को किस तरह कर सकते हैं, लिंक्डइन को किस तरह कर सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस किस तरह, एक एक फीचर उसका, वो भी 1 या 2 दिन का काम है, उसका पूरा समझना और उसके ऊपर अपनी पूरी चीज अपलोड करना। ये सिर्फ कर नहीं सकते, हम इसके अंदर आपका बिजनेस रजिस्टर करा के देंगे, आपके पेजेस बना के आपके बिजनेस रजिस्टर करेंगे और आप लोगों की एग्जिस्टेंस विद योर ऑन वे, मतलब जो आपकी चीज है, आपकी वो जो 3-4 पॉइंट्स आपको दुनिया से अलग करते हैं, उनके तहत ही ये सारा कुछ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर आपकी एग्जिस्टेंस विद मार्केट, उसके ऊपर पूरी मार्केट बनती है, आपको पता है। फिर उसके बाद स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब। आप यूट्यूब चैनल अगर आप प्रॉपर्ली बना लेते हैं और आपको पता होता है कि यूट्यूब चैनल के लेटर ऑन क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे, तो मेरा ख्याल है कि यूट्यूब चैनल इज अनदर बिजनेस, ब्लॉगिंग, ठीक है, वीलॉगिंग। तो ये है, तो इसका आप एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं, आप लोग उसको अटेंड करेंगे। उसके अंदर आपको एक तो डिजाइनिंग भी सिखाई जाएगी, साथ साथ साइमा तो 3 मंथ्स का डिजाइनिंग कर भी रही है ऑलरेडी, लेकिन हर एक को इतना करने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर हम आप लोगों को कंटेंट राइटिंग का एक बताएंगे, ओवरऑल कि आप किस तरह की राइटिंग यूज करोगे तो वो इफेक्टिवली आप अपनी चीज बेच सकोगे, आप किस तरह का डिजाइन बनाओगे तो इफेक्टिवली आपकी चीज बिक सकेगी। 2-3 चीजें, एक डिजाइनिंग से रेलिवेंट, कंटेंट राइटिंग से रेलिवेंट और एग्जिस्टेंस, आपकी एग्जिस्टेंस उस वे में जिस वे में होनी चाहिए, ठीक है, यानी आपका आर्टवर्क। और ये हम बहुत कम प्राइस में ये कोर्स ऑफर करेंगे। मे बी ये अगर आप इसको पूरा समझना चाहें तो ये लंबा चौड़ा काम है कि आपका अपनी हर एक का सेपरेट होगा ना, आपका और आप सबका अपने लिहाज से ही वो कोर्स होगा, ठीक है, लेकिन हम उसको लर्न इकट्ठे बैठ के करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक BLC का मैगजीन लॉन्च करने लगे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट टू। मैंने शुरू से कह रही हूँ कि एक फ्लायर भेज होता है, 5000 फ्लायर्स 20,000 में तैयार होते हैं, ठीक है। उसका साइज अगर इधर हमारे पास पड़ा हो तो मेरी टीम दिखा भी सकती है। ये पेपर जो है मैंने अभी आपको शो किया, इसका हाफ होता है, ठीक है। अब वो आपके घरों में जाते हैं, ये आपके हाथ में जो है ये साइज होता है, जो 5000 कलर्ड अगर आप बनवाते हैं तो उसका ये फ्लायर लेके आइएगा मेरे ऑफिस से कुछ, तो वो अगर आप बनवाते हैं तो वो 20,000 रुपीज में आपको कॉस्ट करते हैं, बिल के साथ अटैच कराना है। किसी को पता है वेलेंशिया टाउन बिल के साथ अटैच करने के कितना चार्ज करती है? 25,000। वाह तालियां 25,000 कितना हो गया ये टोटल? 45,000 में से आपने डिजाइन ही मैंने इसमें डाला, क्योंकि हम तो डिजाइन करके प्रिंटिंग करने भेजते हैं ना, तो हमें तो वही पता है। अगर आपने चलो 400-500 का इसका आर्ट वर्क ये है जी साइज, जो 20,000 रुपए में तैयार होता है और 25,000 रुपए वेलेंशिया सोसाइटी के बिल के साथ अटैच होता है,
ठीक है। ये जिसको नहीं पता वो वेलो बोले, वेलो के साथ लिखे कि बिल के साथ पैम्पलेट अटैच करना है, कितने पैसे लगेंगे, तो वो शो हो रहे होते हैं वहां पे। अच्छा जी, 45,000 रुपीज ये हमारा एक्सपेंस हो गया, हमने अभी कुछ नहीं किया। अब कोई 4-5 हजार आप लोग कर रहे हैं कि जी आपने चक्कर भी लगाए, क्योंकि आप कुछ भी एक्सपर्ट नहीं है, आपकी फोन कॉल पे बात भी नहीं होती, आपको बिल अटैच कराने भी खुद जाना पड़ता है, आपके पास कोई टीम मेंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बिगिनर है ना सब लोग, आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मोटरसाइकिल पे फौरन चला जाए, तो सारा कुछ डाल डूल के 4-5 हजार रुपए, 50,000 रुपए में आपको एक ब्रोशर पड़ा मिला, जो कि आपने वैलेंशिया सोसाइटी के बिल्स के साथ भेज दिया, किसी ने उसको खोला भी नहीं। बिल की टेंशन बहुत होती है, तो वो बिल, वो पोस्टर जरूर पढ़ता है, मैं तो जरूर पढ़ती हूँ मैं जरूर पढ़ती हूँ। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जो है वो बिल पे नहीं करना होता, उनमें से 5,000 में से कुछ 500 चले आपका पढ़ लेगा, वो भी ह्यूज मार्केट है, 5,000 में से 500 अगर आपका पोस्टर पढ़ ले, बड़ी बात है, उसमें से 10 रिटर्न आ जाए तो वो भी बड़ी बात है। आपका चले 10 ही छोटे बिजनेस के लिए 20-30 वापस आ जाए तो पूरे हो जाते हैं समहाउ, ठीक है। हर एक से 1,000 या 1500 का भी मार्जिन हो तो 50,000 पूरा हो गया आपका फर्स्ट बाइंग में ही। तो ये है पोस्टर्स का, मैं उसको निगेट नहीं कर रही, दैट्स वंडरफुल। इसकी क्या इंडिविजुअलिटी, वो तो एक पोस्टर गया, ठीक है, जो मे बी वन टाइम में खत्म हो जाएगा और लोग उसको फेंक देंगे, वो कभी भी उनकी टेबल के ऊपर अच्छे से सजावट के साथ नहीं पड़ा होगा। तो हमने इसका सोल्यूशन सोचा बड़े लंबे अरसे में कि हम VLC का बिजनेस मैगजीन बनाएंगे। उसके अंदर, क्योंकि हमारा बिजनेस क्लब पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, 1.5 साल हो गया अब उसको भी, उसके अंदर हम अपनी जितनी VLC की बिजनेस लेडीज हैं, सबसे पहले आ गया फॉर एग्जांपल कुकिंग, मेरी नजर कुकिंग वालों पे पड़ गई है, तो हम लोग कह लेंगे जी कुकिंग कौन कौन करता है वैलेंशिया में, फ्रोजन फूड कौन करता है, फास्ट फूड कौन करता है, देसी कौन करता है, कुकिंग में रेंज ऑफ कुकिंग्स हैं, उन सबकी एक बन गई, मे बी सेम भी होंगी लेकिन फिर भी आगे भी जाके सबकी स्पेशलिटी हो जाती है, ठीक है। वो एक कंटेंट लिस्ट में शुरू में ही कुकिंग के सेक्शन में वो सबका कुकिंग का आ गया, ठीक है। फोन नंबर भी उधर ही शुरू में हमने दे दिया, उनकी कंटेंट लिस्ट में ही बता दिया कि किस चीज की वो है और ब्रांड का नाम भी दे दिया। 3 चीजें कंटेंट लिस्ट में हमारी हो गई कुकिंग के सेक्शन में। फिर उसके बाद इसी तरह ड्रेसेस, इसी तरह मतलब 2-3 चीजें और। पहले में हम लोग बहुत भरमार नहीं करेंगे, हम लोग सिलेक्टिव लोगों को चूज करेंगे जो पहले आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कुकिंग के अंदर 5 लोगों को लेते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट करना है, फर्स्ट टाइम है तो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, तो लेटर ऑन लोग हमारे मैगजीन को कहेंगे कि इसको मजीद पब्लिश करें। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से 5 पहले में रख लिए फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट। फिर ड्रेसेस में कोई स्टिचर है तो स्टिचर में हमने देख लिया घर में कौन बनाता है, टेलरिंग कौन करता है, डिजाइनिंग के साथ टेलरिंग कौन करता है, फिर साथ कढ़ाई फलाना ये एम्ब्रॉयडरी और वो सारा कुछ मिला के टेलरिंग कौन करता है। सो 3-4 कैटेगरीज उसमें बना देंगे। फिर इसी तरह हम लोग क्लासिफाइड आते हैं ना जी, तो हम लोग हर एक का इंडिविजुअल हमने आइडेंटिटी बनानी है, rows and columns बना के you can Yes. and हर can एक put their का। brochures and your the बिल्कुल। ads according अब शुरू में कंटेंट लिस्ट में सबका इंट्रोडक्शन आ गया कि शुरू में ही लोगों को नंबर भी मिल जाए, आगे जाके फिर वो दोबारा मसला ना हो, क्योंकि एक दफा तो वो पढ़ लेंगे मैगजीन, लेटर ऑन उनको होगा कि फटाफट चीज मिले, तो उनको काफी चीजें वहां मिल जाएंगी। अंदर जाके जो हम 1 पेज या हाफ पेज देंगे डिपेंडिंग अपॉन योर बाइंग पावर कि आप कितना कर सकते हो, हम हाफ पेज और फुल पेज की प्राइसेस निकालेंगे जब निकालेंगे, और उसको कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह बनाएंगे कि 2-4-5 मार्केट के जो एड्स होते हैं, जिस तरह बड़े रेस्टोरेंट्स हो जाते हैं, बड़ी ब्रांड्स हो जाते हैं, उनके बीच में लगा देंगे। उससे क्या होता है कि इसकी कॉस्ट नीचे आ जाती है, वो लोग हमें 1 लाख 2 लाख स्पॉन्सर कर देते हैं, उन्होंने उनका ऐड लगाना होता है, तो वो आप लोगों की कॉस्ट नीचे चली जाएगी। तो हम लोग चाहेंगे कि बिजनेस लेडीज के लिए इसकी कॉस्ट बहुत नीचे रहे। ये जो बिजनेस मैगजीन है इसके अंदर आप लोगों को पहले तो कंटेंट लिस्ट में जगह मिल गई, बाद में बिजनेस मैगजीन के अंदर जाके हाफ और फुल पेज मिल गया। उसके अंदर आप लोग अपनी फोन नंबर्स, अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सब उनको आप बता देंगे, उनके बारे में कोई वेबसाइट या जो भी, फिर आपकी क्या प्रोडक्ट है, आप कौन है। मेरा नाम फॉर एग्जांपल यास्मीन दाऊद है आप देर बाद नजर आएंगे इसलिए देर बाद नजर आने के देखे ना बेनिफिट पब्लिसिटी हो गई। ओके, अब मेरा नाम अरूज हो गया है, आप भी तो देर बाद नहीं नजर आई है, तो वो इम्पैक्ट चला गया, अब आप कुछ भी कर लें। तो भाई मेरा नाम जो होगा उसका पता चल जाएगा हर एक को कि मैं ये हूँ और मैं ये बिजनेस करती हूँ। मैं अपना एड्रेस देना चाहती हूँ तो मैं अपना बिजनेस एड्रेस भी जरूर दूँ। आपको पता है आपका जो बिजनेस है ज्यादा किसने बाय करना है, आपकी मार्केट कौन है, वैलेंशिया के रेजिडेंट्स तो दाएं बाएं करें।
करंटली तो ये राइट नाउ तो ये मार्केट है, बिल्कुल। जब आप उसकी पब्लिसिटी करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर आप ग्रो करते हैं आप। अच्छा, अभी तक हमारी जो डील है वो मैच्योर नहीं हो सकती क्योंकि मेरी अप्रोच में नहीं है ना गुलबाग, मैं हर रोज नहीं वहां जाके बैठ सकती। तो जो आपके नजदीकी लोग होते हैं ना वो जल्दी बेनिफिट लेते हैं। ये चीजें अगर आपको पता होंगी तो रात के किसी भी पहर में आप अपनी लोकल मार्केट को भी टच करोगे। जब आप एक दफा टच कर लोगे तो आप बार बार टच करोगे, ठीक है। तो आपकी जो कस्टमर होता है ना वो आपके इर्द गिर्द होता है, ठीक है। और आप जिससे बाय करना चाहते हैं ना वो भी बहुत ही करीब होगा, तो आप उसी से बाय करोगे। आपको वो चीज वेलेंशिया से मिल रही है तो व्हाई यू विल गो टू एम्पोरियम। किसी के पास टाइम नहीं, हम सब ऑनलाइन बायर्स हो गए। हम क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं कपड़े टाइम बचाने के लिए कि हमें बार बार जाके हर दुकान पे ना देखना पड़े। मैंने बड़ी सारी लेडीज के साथ बैठ के ये चीजें, मैं खुद से नहीं कह रही है, मेरी अपनी बात नहीं है, मैं तो इतना हैसली ना करूं। वहां चले गए तो वहां से सूट ले आऊं, वहां यहाँ ऐसे वाली हूँ, वैसे एक दफा सीजन में ले लिए और बाद में पूछा भी नहीं। हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पहले तो ऑनलाइन देखते हैं, ठीक है, कि बोरे में जाकर घूमना पड़ेगा, पसंद इधर से कर लेते, फिर जाके स्टॉक देखते हैं, ठीक है। अगर उन्हें उनके घर के साथ से वही कपड़े कम प्राइस में मिल जाएंगे तो वो क्यों एम्पोरियम जाएंगे और वो क्यों पहले ऑनलाइन देखेंगे, फिर वो स्टॉक चेक करने वो सारा सिस्टम, जब उनका ऑनलाइन वाला ऑनलाइन की तरह उनको स्टॉक चेक करके चीज मिल रही है, व्हाई दे विल नॉट अप्रोच यू, ठीक है। तो ये आपकी मार्केट जो है वो वेलेंशिया और इसके आसपास की सोसाइटीज हैं, गुलबाग, मॉडल टाउन, ये चीजें लेटर ऑन, पहले अपने घर में बेचें, ठीक है। तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, वहां बेचें तो आप कहीं पर भी बेच सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने आपको बता दिया मैगजीन की बात। नाउ मैगजीन पे भी पैसे लगेंगे, पिछले वाले सेशन पे भी पैसे लगेंगे, तो एक फ्री सेगमेंट है आप लोगों के लिए। हमारा VLC का जो YouTube चैनल है दैट इज फ्री, क्योंकि हमारा ना व्हाट्सएप पे काम बहुत ज्यादा है। हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस शो की हुई है, वी आर नॉट यूजिंग आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, हर एक पे हमारी डेटा पूरा पड़ा हुआ है कि जो हम करते हैं वो हम पोस्ट कर देते हैं, बट हम उस पर कोई पैसा नहीं लगाते, ठीक है। किसी ने लाइक कर लिया, ठीक है, कभी कभार व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं कि इनको आप फॉलो कर लें, कि अगर देख लें तो अच्छी बात है। तो अब हमारा जो प्लान है कि हमारी ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक है वो हमारी ऑडियंस तो बिल्ड हो गई है, तो ये सारी चीजें हमारे जो बिजनेस लेडीज हैं उनकी ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। तो हमने YouTube के इंटरव्यूज का सेशन स्टार्ट किया, ठीक है। पहले हमारे ट्रेनर से शुरू हुए जो VLC के इन हाउस ट्रेनर्स हैं, और फिर मिस उज़मा का भी कल हुआ है जिस तरह टूरिज्म के ऊपर। इसी तरह हम लोग आप लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे जिसमें आप लोग अपनी प्रोडक्ट के साथ आएंगे और अपनी प्रोडक्ट और वो हर चीज आप बता देंगे, एक ओवरव्यू आपकी प्रोडक्ट का। अगर आप कहेंगे कि हमारी टीम आपके घर कर ले तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी टीम को आपके घर में भेज के आपकी प्रोडक्ट का पूरा ओवरव्यू ले लेंगे। लेकिन अगर कहें आपकी यहाँ पर डिस्प्ले करके आप इसको यहाँ नया यहाँ प्रॉपर डिस्प्ले हो सकता है तो आप वो भी कर सकते हैं। हम हर बिजनेस लेडी को कम से कम एक दिन देंगे और उनको 2-4 दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि फला दिन आपका ये हम करना चाह रहे हैं तो अब तक। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपना नाम लिखवाना पड़ेगा कि हु इज इंटरेस्टेड इन दिस एक्टिविटी, ठीक है। उसमें ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी एक वीडियो डेवलप की हुई है, उसमें साउंड लगवा के फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं वो ऑनलाइन सेल करते हैं, जिसका ये यास्मीन दाऊद है, तो जिसका लीना भी है आई गेस, है ना, ऑनलाइन सेल करते हैं ना। तो इन लोगों के पास उन्होंने ऑनलाइन मंगवाना है और ऐसे ही भेज देना है, दे डोंट कीप द स्टॉक ऐसे। तो इन लोगों के लिए हम ये रखेंगे कि इनकी जितनी प्रोडक्ट हैं वो कैटेगराइज कर लेंगे कि हम लोग ज्वेलरी में डील करते हैं, हम लोग बैग्स में करते हैं, शूज में करते हैं, इन कपड़ों में करते हैं। तो उनसे रेलिवेंट वीडियो को हम एक कोलाज सा बना के वीडियो बनाएंगे, वीडियो के पीछे वॉइस ओवर लगवा दें, ठीक है। तो ये हर इस सारी चीज के लिए वी हैव एक्सपर्ट्स एंड वी विल हेल्प इन दिस कैटेगरी फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉर्निंग शो में ना एक रिसेंटली कोई ना मॉर्निंग शो में मैंने अपना लगाया था, क्योंकि वो VLC के टॉपिक पे था तो मैंने शेयर किया था आप सब लोगों के साथ। तो कुछ लोगों ने ना मुझे मैसेज किया कि हम भी मॉर्निंग शो में अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, अगर आपने फ्यूचर में भी कोई काम करना है ना तो आप वो भी आके मॉर्निंग शो में बताओगे ना, तो करने से पहले आपको एक तो ऑडियंस मिल गई और लेटर ऑन जब आप कर लेते तो लोग कहते हैं हाँ जी ये इसका आइडिया था और इसने मॉर्निंग शो में बताया, तो आइडिया की वैलिडिटी ऑथेंटिसिटी थोड़ी हो जाती है। फिर आपकी कहती कि जो भी मसला हो, फॉर एग्जांपल आपने मॉर्निंग शो के अंदर जितनी भी बात करके आए वो तो जितनी प्रमोशन होनी थी मॉर्निंग शोज के थ्रू वो हो गए।
साथ साथ जब आपका मॉर्निंग शो का क्लिप आपके पास आ गया, आपने उसके छोटे छोटे क्लिप्स बना के अपनी प्रोफाइल पर शेयर किए, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये बड़ा वैलिड ब्रांड है, तो वो आपकी प्रमोशन के लिए ही यूज होता है। अगर कोई बंदा मॉर्निंग शो में अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन चाहता है तो वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू, एंड दैट्स नॉट फ्री। ठीक है, वो खुद कॉल करें तो आई गेस फ्री होता है, लेकिन जब आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, वो शुरू में आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपकी ब्रांड का कपड़ा या आपकी ज्वेलरी पहन के बैठते हैं, वो होस्ट आपको बताती है और नीचे टैग, वो पेड होता है। तो इस तरह करके वो पेड होता है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो इसको अवेल करना चाहे, उसकी ब्रांड इस कदर ऊपर जा चुकी हो कि वो 40-50 हजार मिनिमम, जो ये मैं सोच रही हूँ, वो तो लाखों में ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, इट वाज वंडरफुल सेशन और मुझे बड़ा मजा आया। आप सब लोग बिजनेस लेडीज हैं और बिजनेस लेडीज को देख के एक और बिजनेस लेडी को जो वो मिलती है ना एनर्जी, दैट्स डिफरेंट लेवल। तो elaborated, well explained everything. So, I am Uzma Mustafa. Basically, I am a corporate trainer. I have been working with PTCL and Ufone. Then I have been delivering trainings at various educational and corporate platforms. Today I am with you, telling you something very interesting. I hope it turns out to be interesting and you find it enthusiastic as well. So, जी पहली चीज I would always say women should be economically independent. एक बात याद रखें, whether you are married, you are single, whatever status you are enjoying, you must be economically emancipated. Unless and until आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, आप कुछ नहीं कर सकते। If you are dependent on anyone, no matter how good your life partner or your brother or father is, माशाल्लाह सबके अल्लाह ताला करे कि अच्छे हों, लेकिन even then economic independence for women is very important. Second thing is business. Business is, I have been working from 9 to 5. You know, when you are working in any organization from 9 to 5, and in any way you always ignore some factors or some aspects of your life, whether they are your children or your health or other things, you do ignore them. जब आप 9 to 5 की जॉब कर रहे होते हैं, business is something very energetic and very interesting जो आप कर सकते हैं उन aspects को ignore किए बगैर। अगर आप एक business woman हैं, you can pay maximum attention to your child, your health, आप जो भी काम कर रही हैं, आप उसको साथ साथ लेके चल सकती हैं। एक तो business का बहुत बड़ा फायदा है। मैं चाइना गई थी जी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। आई वाज डूइंग माय PGD इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वहां पर मैंने ये देखा कि चाइना में तमाम जितने आपके बिजनेसेस हैं ना, दे आर इन द हैंड्स ऑफ वुमेन, चाइनीज वुमेन। आपको चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वेदर इट्स गारमेंट्स, क्लोथिंग, मशीनरी, कार्स, इवन हाई टेक टेक्नोलॉजी उनकी, वहां पर उसको जो सेल करती हुई है ना, वो खवातीन नजर। This means women do have some business acumen. Business acumen क्या है जी? That knowledge, that understanding which makes you a best salesperson. Business में ज़रूरत किस चीज़ की होती है? Your selling techniques. How you move into the shoes of the other person and you sell your products. Empathy. आप दूसरे की जगह जाके सोचते कैसे? एक बात हमेशा याद रखें, इकरा भी अभी इस पे बात कर रही थी। You have to know your customer. Knowing your customer. इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा जी सेशंस भी कराए जाते हैं। There are wonderful training sessions on it कि knowing your customer. आपने कभी गौर किया है, कभी आप किसी शॉप में जाएं, आप रहमत मार्केट में किसी शॉप में जाएं, तो आप शॉप में गई और आप ब्लू कलर के कपड़े को देख रही थी शॉप पर गौर से, तो कस्टमर जब आपको, दुकानदार आपको दिखेगा ना, तो आपको फौरन कहेगा मैम this color goes wonderful with you. आप ब्लू कलर खरीदें, ब्लू आपके जबरदस्त लगेगा। ऑल ऑफ अ सडन आप ब्लू को थोड़ा सा साइड पे कर दें, ब्राउन पे हाथ रख लें, ऐसे लगेगा मैम ब्राउन तो आपकी पर्सनैलिटी से इज अ परफेक्ट मैच। उसने ब्राउन को भी सेल करना है और उसने ब्राउन को भी करना है और ब्लैक को भी करना है, उसके लिए देयर इज नो डिफरेंस। ही इज एक्चुअली प्लेइंग विद योर साइकी, आपकी इंक्लिनेशन के तरफ। So as a saleswoman, as a businesswoman, as an entrepreneur, in whichever capacity you are working, you have to see customer psyche. और एक बात और याद रखें, बात से बात जनरेट होती है। कस्टमर हमेशा, एक साहब थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए गए ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा जी हमने जॉब एडवर्टाइज की थी किसी MBA के लिए, तो आपकी तो क्वालिफिकेशंस मैच नहीं करती, आप बहुत कम उससे पढ़े लिखे। उस लड़के ने कहा कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी,
और आप मुझे काम करने दें, अगर मैं सेल्स पूरी ना कर सका, इंस्टेंट बैंक उन्होंने कहा चलो, ओनर जो था ना उसकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी फलां जो हमारा स्टोर है ना उसकी सेल्स कंपैरेटिवली बहुत कम है, इसको टेस्ट केस के तौर पे वहां पे लगा दें। उस लड़के को वहां पे डिप्यूट कर दिया गया जी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ ही महीनों में द सेल्स वर अप टू द स्काई। ओनर वाज अमेज्ड, उसने कहा जी इस लड़के ने ऐसा क्या किया कि सेल्स इतनी ऊपर चली गई। उन्होंने एक दिन उस शॉप को विजिट किया और उसने कहा कि मैं साइट पर बैठा हूँगा and nobody will tell that I am in the store and I will see what happens. So all of a sudden a customer came and he said कि जी मुझे मछली पकड़ने का कांटा चाहिए, and this young boy was dealing with the customer. उसने कहा सर this is a very useful, ये वो है टूल है, very interesting, हम लोग आज इसे बड़ी कम प्राइस पे दे रहे हैं, आप ये। उसने कहा हाँ ठीक है चले। उसने कहा सर जब आप जा रहे हैं मछली के शिकार पे तो वहां पे आपको मछली का ऐसा खूबसूरत खाना चाहिए होगा जिसकी ऐसी एरोमा हो कि जब वो आए तो मछली रह ना सके और वो खाने की तरफ आ जाए। तो सर ये आज फीड हम दे रहे हैं बहुत कम प्राइस पर, आज इसके ऊपर भी प्रोमो है। कस्टमर ने कहा ओके, उस बंदे ने कहा पैक कर दे। उसने कहा सर जब आप जा रहे हैं तो दैट इज अ वेरी मडी एरिया, आई नो दैट प्लेस, आई हैव बीन टू दैट प्लेस। सर वहां पे बड़ा ज्यादा मड, ये लॉन्ग शूज है रबर के, सर प्लीज ये आज इनके ऊपर प्रोमो है, इन पर ये देखिए $5 आज ऑफ है, आज ले लें आप। सर उसके बाद बहुत एक्सपेंसिव है। उसने कहा अच्छा ये भी उसने कहा पैक कर दे, उसने नारा लगाया। उसके बाद उसने कहा सर देखिए ना मछली आते आते पता तो नहीं चल पाना कितनी देर लग जाए, यू विल बी वेटिंग देयर सर, दिस अम्ब्रेला, आज अम्ब्रेला पर भी प्रोमो है हमारी, बहुत स्पेशल अम्ब्रेला है, यू विल बी नीडिंग दिस अम्ब्रेला डेस्परेटली ओवर देयर, क्योंकि हो सकता है उस दिन सनी डे हो, धूप पड़ी हो, तो आप ये प्लीज ये लें। बहुत से सोचा कस्टमर ने, उसने कहा ठीक है, उसने कहा पैक कर दे। उसने कहा सर एक सेकेंड, सर ये मैगजीन आपको वेट करना पड़ेगा, यू विल बी हैविंग अ सनी डे, सर बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, आज हमारे मैगजीन पर बड़ी जबरदस्त ऑफ सेल चल रही है, आप ये मैगजीन ले लीजिए। और इतने में वो जो बंदा था बॉस, वो उठा खुशी से, उसने कहा बस कर दे भाई, और कितना बेचेगा। तो कहने का मकसद ये कि यू हैव टू जनरेट द नीड। याद रखें अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो नीड जनरेट कर रहा होता है, चीज से चीज रिलेट होती चली जाती है और आपकी मार्केट एक्सपेंड करती चली जाती है। अच्छा जी, ये कुछ बात थी बिजनेस एक्यूमेन पर और आपकी सेल्स पर हमने बात की। I have recently joined, I'm working for a company that is SBR, Sovereign Business Resource Group. ठीक है जी, Sovereign Business Resource Group. I'm working as project head and brand ambassador for that company. हमारी कंपनी करती क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कंपनी for last 3 decades is working in Central Asian states, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, पोलैंड वगैरह में ये काम करना। इसका पर्पस है B2B को प्रमोट करना। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है B2C जिसमें आप बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर जाते हैं, जैसे आपकी डाउनटाउन होते हैं, आपके संडे बाजार लग रहे होते हैं, ये चीज होती है। एक होता है B2B जिसमें आप दूसरे बिजनेसमैन के साथ बात करते हैं। हम एक विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, स्पेशली if you are dealing with cotton bed sheets, if you are dealing with ladies garments, if you are dealing with parlors, तो आपके पास there are wonderful business opportunities in Baku and Azerbaijan. आज सुबह मेरी मीटिंग थी कजाकिस्तान के कॉन्सुलेट राव खालिद साहब के साथ, कैंट में उनका ऑफिस है, उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे अपना कॉन्सुलेट खोला। उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कजाकिस्तान के अंदर देयर इज सो मच मनी, इट्स वन ऑफ द richest countries and they are ready to invest in different projects. उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपकी कोई खवातीन जो पार्लर्स का बिजनेस करना चाहती है, want open their avenues there, या अगर कोई कश्मीरी और इस किस्म के ड्रेसेस में डील करता हो, तो we have wonderful opportunities for them. हम निटिंग जो स्वेटर्स बुनते हैं बच्चों के और बड़ों के और डिफरेंट चीजें, तो इनकी मार्केट, देयर इज अ वंडरफुल मार्केट देयर।
ड्राई फ्रूट्स, मिसलेनियस आइटम और आप चीजें पूनिया वगैरह जो बच्चों की आपके ख्याल में हैंडक्राफ्ट जो ज्यादा Exactly. वो करते हैं। इस किस्म की चीजों के लिए तो हम बेसिकली वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू अज़रबैजान जिसमें खैर टूरिज्म और CSI सीइंग और वो तो होता ही है, वो इकरा बल्कि आपको ब्रोशर भी भेजेंगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट। अदर देन दैट जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें व्हाट वी आर प्लानिंग कि हम आपकी मीटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में करवाएंगे। उस साइड के आपके जो दूसरे लोग इन बिजनेसेस को डील कर रहे होंगे और आपसे जो चीजें खरीदना चाह रहे होंगे, द इंपोर्टर्स एट दैट एंड उनसे, एंड देन लॉजिस्टिक्स आपने किस तरह करना है, उनको भेजना किस तरह है, इन सारी चीज़ों के लिए हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस वुमेन जो उस पर जाना चाहें। फर्स्ट विजिट वुड बी टू अज़रबैजान, आवर सेकंड विजिट वुड बी टू कजाकिस्तान जो हम कजाकिस्तान में एक्सपोर्ट करेंगे। और जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी उतना ज़्यादा आप लोग ग्रो करेंगे। जब आप लोग ग्रो करते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है, पूरा सिस्टम हमारा बेहतर होता है। आपको पता है किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स पर कभी नहीं डिपेंड कर रही होती, एक्सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या बना के दुनिया को दे रहे हो, क्या बना के बेच रहे हो, तो इसके ऊपर आप लोग सोचिए। ये हमें भेजे भी हुए होंगे, इकरा ने प्लान्स भी आपको भेजे होंगे, तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। प्लस हम इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिप के हमने जाके अपना प्रपोजल उनको देना है। मैं बताती हूँ, बेसिकली वी आर गोइंग देयर। जब हम जाएंगे तो आपको हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फ्रॉम मेकअप इंडस्ट्री, तो वहाँ पर जो लोग मेकअप में करना चाह रहे होंगे ना, उनसे हम आपको मिलवाएंगे वही ताकि आप बेसिकली हमारे पास exactly प्रपोजल होगा आपके पास सारा। होना चाहिए। One thing is you should have samples, you should have proposal, a complete proposal कि आप कितनी चीजें कितने बल्क में प्रोवाइड कर सकती हैं, आप किस रेट पर देंगे और आपसे लेने में उनको क्या फायदा होगा ऑन द कंपैरेटिव एनालिसिस कि वो अगर किसी और से लेते। इंडिया, आपको पता है इंडियन वुमेन आर डूइंग लॉट ऑफ बिजनेस। इंडिया राइस भेज रहा है, इंडिया टोमेटोज भेज रहा है, इंडिया पोटैटोज भेज रहा है। उनकी मार्केट में राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर फूड आल्सो। तो वो होता ये है कि मैक्सिमम इंडिया इस मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। व्हाई नॉट वी एज पाकिस्तानीज आर लैगिंग बिहाइंड। तो अगला आने वाले वक्त का जो आपका दुबई है ना, दैट इज अज़रबैजान। इसमें रशियन स्टेट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रही हैं, बहुत ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है बेसिकली। हाँ, एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इफ समबडी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, दे वांट proficient teachers, English language teachers, art and geography। ये तीन सब्जेक्ट्स हैं जिनको उन्होंने हमें कहा है कि they need teachers, English, geography and art, and their salary packages starting from 6,50,000 to 7 lakh per month। ये ऑनलाइन होगा या फिजिकल? नहीं फिजिकल जी, with accommodation, you will be staying there with accommodation and with medical insurance at primary and middle level. They are needing teachers for these subjects, and they have European schools and they have British schools, so they need people for this thing. So you have employment opportunities, you have business opportunities if you want, and you can join us for this trip, and you can go and you can see yourself how much growth and how much growth index rate is there and how much you can export and sell your products. इसके ऊपर अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो you are most welcome. If they give any working visa for teachers? You will be going on business visa. If you get a job in that school, then you will get invitation from the school and work visa will be awarded in that case. 3 एरियाज मैंने आपको बताए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात याद रखिए, जब भी कोई मुल्क, क्योंकि आपको पता है ये लोग रशिया के अलग होने के बाद से ये अलग हुए, जब भी कोई मुल्क डेवलप करता है ना, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न नेशंस और उनको सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत होती है। एंड देयर चिल्ड्रन आर राइट नाउ लैगिंग इन दिस domain, so they want somebody to train their children for better spoken English. They need good English teachers, they need art teachers, and they need geography teachers. These 3 are the subject areas. Salary packages I have already told you, so it's a good opportunity. What would be the degree requirement regarding that? Masters and your proficiency.
master's level qualifications and then proficiency as well. And if you have an experience of teaching in a well-reputed school in Pakistan, that would be an added advantage. For example, you have been teaching in Beacon House or any other good school. So if you have a certificate for that, that would be an added advantage. So you have a good opportunity. और वैसे भी याद रखिए, when you move out, when you explore the world, when you see the things, तो दुनिया आपके लिए बहुत सारे avenues और बहुत सारी चीजें खोल रही होती है. हम एक जगह बैठे होते हैं तो हम यही सोच रहे होते हैं कि शायद यही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं. क्योंकि मैं, believe me, I tell you my own example. I worked for so many years, but then I come to this conclusion कि हम जब job कर रहे होते हैं ना, तो we are seeing ourselves every day. It's just like that. You are seeing your own reflection in the mirror. रोज आप आईने के आगे खड़े होते हैं और अपने ही आपको देख रहे होते हैं. But when you do business, you open the window and see the world. जो थोड़ी सी अभी आपको इकरा ने भी वर्ड दिखाई. So you see the world and open up new avenues. So this is a good opportunity. If you have plans, you can contact Ikra. Or if you're any of your relative, friend, or anyone wants to visit and wants to go for these things which I have told you, you can contact. Thank you very much. Thank you so much.